Welcome to session 4 of business law, that is capacity of contract. In this we'll cover topic minus contract, minus position under English law, mental incompetence and incompetence through status. First is who are competent to contract, right? कौन लोग competent है contract करने के लिए? It is defined in section 11. Section 11 provides that every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Means कोई भी person कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा जिसने एज अपनी मेजॉरिटी एज कंप्लीट कर ली होगी, प्लस जो कि साउंड माइंड का है और किसी भी लॉ के अंडर वो डिसक्वालीफाई नहीं हुआ है. ऐसे पर्सन्स कॉम्पिटेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. सो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इट मे अराइज फ्रॉम मीन्स कौन पर्सन्स incapacitated है to the contract. Minors, if a person is of mental incompetence, and third is status. अगर उसका status ठीक नहीं है तो भी वो incapacitated होते हैं contract करने के लिए. इसके बाद हम बात करते हैं minority क्या है. Who is a minor? माइनर वो पर्सन है जिसने अभी तक अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की है. Right, a minor is a person who has not attained majority. So according to section 3, a person is deemed to have attained majority. So in the following two cases, a minor attains majority after 21 years of age. 21 ईयर्स की एज के बाद वो मेजॉरिटी अटेन करते हैं. तो उस केस में क्या है, जब तक वो माइनर रहते हैं तब तक माइनर के जो गार्जियन होंगे वो उसके प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे. राइट, वेयर अ गार्जियन ऑफ माइनस पर्सन और प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोर्ट के सुपरविजन में रहती है. इसके बाद है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज वॉइड and a minor cannot bind himself by a contract. So a minor is he is not competent to contract. अभी हमने बात की जब तक कोई पर्सन मेजॉरिटी एज में नहीं आ जाता तब तक वो इनकैपेसिटेट होता है. तो इसीलिए माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, नल एंड वॉइड होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट and he cannot bind himself by the contract. Second is a minor can be a promisee और a beneficiary. यहाँ पर हम बात करते हैं कि माइनर की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती, माइनर हमेशा बेनिफिट्स एंजॉय करता है. सो ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी a minor cannot bind himself by a contract, but there is nothing in the contract act which prevents him from making the other party to the contract to be bound to the minor. तो ऐसा नहीं है कि माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट ये चीज़ ज़रूर है कि माइनर अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ. Next is minor's agreement cannot be ratified by the minor on his attaining majority. Means majority age attain करने के बाद minor के साथ किया गया agreement ratify नहीं होगा by the minor. So he cannot ratify the agreement on attaining the age of majority because क्योंकि original agreement जो किया गया है वो शुरू से ही void ab initio मीन्स शुरू से ही वो null and void होता है. So validity cannot be given to it later on. बाद में majority age attain करने के बाद minor को ये validity नहीं दी जाती कि वो ratify कर सके agreement को. If a minor has received any benefit under the void contract, he cannot be asked to refund the same. That means कि अगर minor ने कोई भी benefit receive किया है अंडर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स जब वो माइनर था उस केस में माइनर की एज में उसने कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है अदर पार्टी से, तो मेजॉरिटी एज अटेन करने के बाद
वो उससे रिफंड नहीं, पार्टी उससे रिफंड नहीं मांग सकती. Similarly, minor is always allowed to plead minority. He always enjoy minority, and he cannot stopped to do so even when, even where he had procured a loan and entered into some other contract by falsely representing that he was of full age. तो इसके ऊपर कोई he always allowed to plead minority, चाहे उसने falsely represent किया है कि मैं पूरी फुल एज का हूँ. उसके बाद माइनर, एक पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं ट्रीट किया जा सकता, और अगर वो माइनर ही में बी द पार्टनर with the consent of all other partners in the partnership but for the time being only. और किसी भी माइनर को पार्टनरशिप में अगर एंटर किया जाता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, और प्लस वो सिर्फ माइनर के बेनिफिट्स के लिए ही उसको एडमिट कराया जाएगा. Next is minor's estate is liable to a person who supplies necessaries of life to a minor or to one whom the minor is legally bound to support according to his station in life. That means कि जो माइनर की एस्टेट है, माइनर की जो प्रॉपर्टी है, उससे सिर्फ जो उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की जाएगी उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल है, अदरवाइज किसी भी चीज़ के लिए माइनर की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जा सकती. उसके बाद माइनर के पेरेंट्स और गार्जियंस दे विल नॉट बी लायबल फॉर द माइनर्स क्रेडिटर. माइनर ने अंडर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी लोन लिया है जो उसके क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं, या फिर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मीन्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उस केस में जो भी लायबिलिटी अराइज होती है माइनर की, उसके लिए माइनर के पेरेंट्स या माइनर के गार्जियंस लायबल नहीं होंगे, वेदर that contract is for necessaries or not. So however the parents, they are liable where the minor is acting as an agent of the parents or the guardian. Next is minor, he can act as the agent. मीन्स माइनर एक एजेंट का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन एज एन एजेंट जो भी उसने बिहेव किया है, जो भी उसने एक्ट किया है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल. सो उसने जो भी एक्ट किया है वो सब प्रिंसिपल को बाइंड करते हैं. दैट प्रिंसिपल विल बी बाइंड बाय हिज एक्ट विदाउट इनकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी. माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल की ही लायबिलिटी अराइज होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही माइनर काम कर रहा है. तो माइनर एजेंट है, लेकिन वो किसी भी काम के लिए बाइंड नहीं होगा. इसके बाद है माइनर्स पोजीशन अंडर इंग्लिश लॉ. माइनर की अंडर इंग्लिश लॉ माइनर की क्या पोजीशन है, वो क्या पोजीशन एंजॉय करता है. अंडर इंग्लिश लॉ मीन्स the period of life which precedes the completion of 21st year. मीन्स 21st ईयर कंप्लीट करने से पहले जितना भी उसकी लाइफ का पीरियड रहेगा, एंड पर्सनस अंडर दैट एज दे आर रिगार्डेड एज इन्फेंट्स. सो एज पर इंग्लिश लॉ जितने भी पर्सनस 21st ईयर की एज से पहले के टाइम पीरियड में उनको बोला जाएगा कि दे आर इन्फेंट्स, they are regarded as infants. So the contracts entered into by an infant, they are classified into the following categories. तो जो भी इन्फेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं. मीन्स वो स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड होते हैं. दे मे बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो. मीन्स अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो एक्सेप्टेंस देती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो एक्सेप्ट करती है एग्रीव्ड पार्टी तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं. दे आर ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड contracts enforceable at the option of infant but not at the option of other party. So contract तभी enforceable होंगे, तभी as per law किए जाएंगे जब इन्फेंट की रजामंदी होगी. मतलब इन्फेंट अपना वो देगा, इन्फेंट अपनी, if he is satisfied with the contract
then only the contracts will be enforced. मीन्स थर्ड पार्टी की ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किए जाएंगे. इसके बाद बात आती है मेंटल इनकम्पिटेंस की. अभी हमने बात की कि कौन लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेंटल कॉम्पिटेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, राइट. सो एज पर सेक्शन 12, a person is said to be of unsound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is incapable of understanding it and of forming a rational judgments so as to its effect upon its his interest. तो अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस को समझने के लिए, और वो प्रॉपरली जजमेंट नहीं दे सकता अपने इंटरेस्ट में, तो वो मेंटल इनकॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आता है. नॉर्मली पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ज़्यादातर वो अनसाउंड रहता है लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड का होता है. तो उस केस में जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. And on the other side, if a person who is all usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. तो अगर हम बात करें कि ज़्यादातर साउंड माइंड का रहता है पर्सन बट कभी कभी वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो जब उसकी कंडीशन होती है अनसाउंड माइंड की, तो उस कंडीशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं होगा, कर नहीं सकते, क्योंकि वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. दैट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो इनकॉम्पिटेंसीज में ल्यूनेटिक्स, इडियट्स, ये पर्सन्स कैटेगराइज किए जाते हैं. ये ल्यूनेटिक्स होते हैं जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जिनका मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशंस को समझ नहीं पाते, उनको प्रॉपरली जज नहीं कर सकते. ठीक है. So lunatics are this is a person who is mentally deranged due to some mental strain और other personal experiences. उसका personal experience ऐसा है जिसकी वजह से वो shock में है and he is not capable to make the contract. However, he has some intervals of sound mind. कभी कभी वो sound react करता है, sound mind react करता है, लेकिन वो ज़्यादातर वो mentally disturb रहता है. इसके बाद है idiots. Idiots are the persons who are permanently of unsound mind. मीन्स हमेशा ही वो अनसाउंड माइंड के रहते हैं. जैसे ल्यूनेटिक्स कभी कभी साउंड माइंड के रहते हैं, बट इडियट्स ऐसे टाइप के पर्सन्स होते हैं जो कि हमेशा ही अनसाउंड माइंड के होते हैं, और इसीलिए इनको हम इनकॉम्पिटेंट कैटेगरी में डालते हैं. इसके बाद हम करते हैं थर्ड कैटेगरी, ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स. ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन्स होते हैं अ पर्सन हु इज़ ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड और डिलीरियस फ्रॉम फीवर सो एज टू बी इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. दैट मीन्स कि कुछ पर्सन्स इस तरीके से होते हैं कि वो हमेशा ड्रंकर्ड होते हैं, हमेशा ड्रिंक की हुई होती है उन्होंने. तो इस टाइप से जो ड्रंकर्ड पर्सन्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द agreement. They cannot understand the rules and the conditions of the agreement, right? So also these persons are also incapable of enter into the contract. नेक्स्ट इज़ द इनकॉम्पिटेंस थ्रू स्टेटस. अभी हमने पहले फर्स्ट स्लाइड में देखा कि इनकॉम्पिटेंस स्टेटस के थ्रू भी आती है. फर्स्ट केस था माइनॉरिटी, सेकंड केस था कि इनकॉम्पिटेंस थ्रू, थर्ड केस था इनकॉम्पिटेंस थ्रू स्टेटस. अब स्टेटस भी अफेक्ट करती है इनकॉम्पिटेंस को. हाउ? लेट्स सी. बिसाइड्स माइनर्स एंड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर सम अदर पर्सन्स ऑल्सो. जो पर्सन्स माइनर हैं, जो पर्सन्स अनसाउंड माइंड के हैं, वो लोग तो एंटर कर ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट में, बट इनके अलावा भी कुछ पर्सन्स हैं जो कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे मे बी पार्शली इनकॉम्पिटेंट और दे मे बी होली इनकॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट.
सो इन सब के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है। इस कैटेगरी में आते हैं एनिमीज, एन अलाइन फ्रेंड, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स एंड इंसॉल्वेंट पर्सन्स। अलाइन फ्रेंड होते हैं whose country is at peace with the Republic of India. They has usually the full contractual capacity of a natural born Indian subject, but he cannot acquire property of Indian ship, and also they cannot be employed as master or any other chief officer of such a ship. They are treated as aligned friend and they are incompetent to the contract. So this is the end of the session. In the end you have to answer following two questions. First question is define the ability of minor to enter into the contract, and second is can both align enemy and align friend is incapable of get into contractual relationship, how both parties are different. Thank you very much.